हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In this video, we are going to discuss some case scenarios which have been released by the Institute for Income Tax for the May and November 23 examinations. So I'll be discussing the case scenario that has been given, that has been hosted on the website, and we'll be discussing this in parts. So one by one, we'll be discussing the case scenarios that have been presented. During this discussion, we'll be focusing on the concepts, and I'll also explain you how to read the question properly and which areas should be focused so that we are able to solve the question in time. Because many a times a lot of students have this issue that the case scenarios that are available in the question paper, they are quite lengthy and they take up a lot of time of your total paper. So how to solve these questions in order to get the answers correctly, focus on the concepts, and also complete it within a particular span of time is very important to understand. So let us start. The first case scenario which we are going to discuss is case scenario 2. Mr. Prem is a partner in two firms, X and Company, Mumbai, and Y and Company, Delhi. X and Company has four partners, including Prem, who shares profits and losses equally. Mr. Prem resigned from X and Company on 1st of April 2022. On the said date, the capital balance of each of the partners stood at 32 lakhs. In order to settle the dues of Mr. Prem, the firm revalues its land for the first time since its purchase, and the valuer also valued self-generated goodwill at 70 lakhs. The firm has the following capital assets whose details are as follows. So there are three lands, Pune, Nagpur, and Mumbai, and each of them has been valued as on 1st of April 2022 when Mr. Prem is retiring. In April 2022, X and Company gave land at Nagpur and 15 lakhs money to Mr. Prem to settle his capital balance. Okay, तो वो फर्म छोड़ करके जा रहे थे, तो कंपनी ने मतलब फर्म ने बदले में उनको कुछ कैश मतलब कुछ मनी एंड कुछ एक लैंड जो है नागपुर का वो अपने पार्टनर को दे दिया टू सेटल हिज ड्यूज. द फर्म वाई एंड कंपनी, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई. सो वाई में क्या बोला है, डिसॉल्व्ड ऑन 1st of March 2023 and distributed its land at Chandigarh, Mohali, and Gurgaon on the same date to its three partners, Prem, Akshay, and Arav. इधर चार थे, इधर तीन थे. Whenever you are reading a case scenario, try to keep in mind जो जो मेन चीजें हैं, और अगर हो सके तो एक बहुत अच्छा मतलब तरीका होता है which I normally suggest कि जब जब आप मेन मेन चीजें हैं आप शॉर्ट में लिखते जाओ. This I used to follow when I was studying, and I also tell this to the students as well कि जैसे एक्स में हमने देखा चार पार्टनर्स थे, इसमें हमने देखा तीन पार्टनर्स थे, इक्वल था, ठीक है, रेशो लिख लिया, यहाँ पर भी रेशो लिख लिया. सो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज. यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेम रिटायर्स, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन. तो आपको एक जब जब मेन मेन पॉइंट्स आप लिखते जाते हो ना, आपको क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो दिमाग में बैठ जाती है ना. बार बार ऊपर वैल्यूज तो ऑब्वियसली देखनी पड़ेंगी, बट कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा कि अरे यहाँ पर क्या हुआ था, फिर यहाँ पर क्या हुआ था. तो यहाँ पर आप लिख लो प्रेम रिटायर नागपुर, तो आपको ध्यान रहेगा कि लैंड दिया है नागपुर का, मनी दिया है, ऐसा है ना. एकदम शॉर्ट में, पूरा डिस्क्राइब तो करना ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे वो करना है, टिक करना है. रिस्पेक्टिवली, ओके, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड्स आर गिवन अंडर, तो ये वाई के लैंड्स दे दिए हैं इन्होंने, ऊपर जो दिए हैं वो एक्स के डेटा दे रखा है. यहाँ पर तीन लैंड्स थी और गुडविल थी सेल्फ जनरेटेड, और यहाँ पर तीन लैंड्स है, फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो तीनों को एक एक लैंड दे करके उन्होंने काम खत्म कर दिया. In addition, Prem and Akshay were given money of 8 lakhs and 11 lakhs respectively on 1st of March 23. ठीक है. CII आपको दे रखे हैं हर साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. Now, very important. First, I am going to explain you the concept, which sections are being applicable in this case, and then we'll go to the question. We'll not directly solve it. So basically, आपको क्वेश्चन पढ़ के काफी हद तक क्लिक तो हो गया होगा कि कैपिटल गेन के ये बहुत दो मेजर पोर्शंस है जिसमें कि अमेंडमेंट आया है पिछले सालों में, और वो बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं जब से अमेंडमेंट आया है. It has been included in RTPs as well, this kind of case scenarios, and obviously there is a probability that the question will be as in exam because it is a recent change. So whenever a thing is amended, it becomes more probable that it will be asked in the questions or examinations. 45(4)
और 9B, ये दो सेक्शंस की बात होती है जब डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एंटिटी होता है. Now, one point which is very important to be kept in mind is 9B is applicable both in case of reconstitution and dissolution. तो अगर फॉर्म बंद होगी तभी भी 9B सेक्शन अप्लाई होगा, और रिकॉन्स्टिट्यूट होगी मतलब जैसे इस केस में प्रेम जा रहा है फॉर्म से, तो फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ऑब्वियसली पीएसआर चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, तो तभी भी 9B अप्लाई होगा. However, 45(4) is applicable only at the time of reconstitution of a firm. So 45(4) will be applicable in case of only X and company. Y and company के केस में हम 45(4) applicable नहीं करेंगे, because 45(4) is only for reconstitution and 9B is for both reconstitution plus dissolution. तो मतलब 9B दोनों में लगेगा, X and Y, and 45(4) जो है वो सिर्फ X में लगेगा. अब इनके बारे में बात कर लेते हैं. 9B is quite similar to a normal capital गेन सेल जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ट्रांसफर होता है किसी कैपिटल एसेट का, तो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गेन आ गया. सेम उसी तरीके से हमको 9B में कंप्यूटेशन करनी है. जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो हमारी डीम्ड सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कर दो, बचा हुआ जो है वो गेन निकल जाएगा. जब हम 45(4) की बात करते हैं, 45(4) टॉक्स अबाउट द पेमेंट मेड टू सेटल द कैपिटल बैलेंसेस. सो व्हेन यू टॉक ऑफ 45(4), इट इज the case is basically that whatever your capital balance has been settled by the firm. तो जैसे प्रेम की केस में हम निकालेंगे तो प्रेम का जितना कैपिटल है वो आप देखोगे, सिंपल लॉजिक लगाना एकदम अकाउंट्स का, जितना हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेस से कनेक्ट करके चले उतना वो आसान हो जाती है. हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आप भले कितनी ही बड़ी पढ़ाई करो, कितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ो, द मोर यू विल ट्राई टू कनेक्ट इट टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली. अब जब हम इसको टैक्स के लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो 45(4) कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एकदम सिंपल अगर मैं बताऊं तो आप पार्टनर को पैसा दे रहे हो और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है. ये 45(4) का क्रक्स है, ठीक है. नाउ व्हेन यू आर पेइंग टू द पार्टनर, वो क्या चाहते हैं कि पार्टनर को जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो करोगे क्या, सिंपल उसकी कैपिटल में जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट वगैरह है ड्यूरिंग द पीरियड का, वो आप एडजस्ट कर दो. जो उसका कैपिटल बैलेंस आ गया उसमें से आपने उसको जितना पे किया उसका डिफरेंस निकाल दो. सो इफ द कैपिटल इज लेट्स से 50 lakhs एंड यू हैव पेड लैंड और मनी एक्सेट्रा वर्थ रुपीज 60 lakhs, तो 10 lakhs विल बी द अमाउंट चार्जेबल अंडर 45(4). दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. कैपिटल के ऊपर आपने जितना भी सामने वाले को दिया है वो एक्स्ट्रा आपके हाथ में 45(4) में टैक्सेबल होगा. अब वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, वो मैं आगे बताते जाऊंगी आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. सो एक शॉर्ट हमने ओवरव्यू लिया 45(4) और 9B. Another important thing, whenever you are calculating 45(4), self generated goodwill या self generated assets का impact आपको नहीं देना है, because it will unnecessarily inflate the capital, and जितनी ज्यादा कैपिटल उतनी गेन कम, जो सरकार अलाउ करेगी नहीं. सो इसको लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से समझते चलें, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखें, what would be the amount taxable under section 9B. 9B जो है वो दोनों पर लगेगा, है ना. हमने अभी बात करी रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन दोनों पर, तो एक एक का निकाल लेते हैं. एक्स एंड कंपनी के केस में एक ही लैंड ट्रांसफर हो रहा है, लैंड एट नागपुर लैंड का सेल वैल्यू विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू वट एवर दैट हैज बीन गिवन, सो दैट इज 45 lakhs. और इसके में से आप माइनस करोगे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड. So what is the cost? 25.4 lakhs purchased on 2015 April. So 15-16 का हम उठा लेते हैं indexation. That is 254. So 25.4 lakhs. 25.4 lakhs multiplied by divided by 254 multiplied by 331. That is the CII of previous year 22-23, for which the attempt applicable assessment year for the November and May 23 attempt is assessment year 23-24. So यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल गेन. So 25.4 divided by 254 multiplied by 331. So that will give us 33,10,000 हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा. 45 लाख में से मैंने माइनस किया तो 11,90,000 is the capital gain which is taxable in the hands of X and company under section 9B. Talking about Y and company, तो यहाँ तो डिसोल्यूशन ही हो रहा है, तो तीनों ही लैंड्स पे लग जाएगा. तीनों लैंड्स की फेयर मार्केट वैल्यू लिख लेते हैं.
तो तीनों लैंड्स की हमारी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 62, 59 एंड 70। कीप इन माइंड कि हम जो वैल्यूज उठा रहे हैं वो हम सही फर्म की सही फर्म को असाइन करें, 62, 59 एंड 70 lakhs, है ना। एंड देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18.4, 15.24 एंड 16.7, इनको करना है हमको इंडेक्स, है ना। 331 सिंपल, जैसा हम नॉर्मल कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो हमको आता ही है। डिवाइड करते हैं इनको, सीआईआई कौन सा लेना है, यहाँ पर है 11 जुलाई, मतलब 11/12 का हमारा है 184 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले को। देन द नेक्स्ट वन इज 2015 से 15-16 का हमने अभी देखा था 254, and the last one is purchased in 2011 February, so we'll be taking 10/11 167। चलिए अब इनकी हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके क्या निकाल लेते हैं, गेन। तो 18.4 into 331 divided by 184, 33.1 is our indexed cost of acquisition, and माइनस करने के बाद जो गेन आ रहा है that is 28.9 इन लैक्स है, ये सब मैं इन लैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज आर 59 lakhs में से हमको कॉस्ट घटानी, 15.24 मल्टीप्लाइड बाय 331 डिवाइडेड बाय 254, so 19.86 minus 59, so 39.14 is our gain। and lastly 167 अगेन यहाँ पर भी उन्होंने सिंपल ही दिया है फिगर ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। तो 33.1 हमारा कॉस्ट आ जाएगा एक्विजिशन का, इंडेक्सेशन के बाद 36.9 इज माय गेन, सो 39.14 प्लस 28.9 इसको हम निकालते हैं तो 10,104,9,4,000 दैट इज 1,04,94,000। एंड इधर आ रहा था 11,90,000। ऑप्शन हमारा ए है क्या, देख लेते हैं नीचे, 2.A इज करेक्ट। ओके, सो दोनों के केस में 9B तो लगेगा ही, इररिस्पेक्टिव कि वो डिसोल्यूशन है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन अंडर 45.4 इन हैंड्स ऑफ एक्स एंड कंपनी, तो निकाल लेते हैं। 45.4 में क्या देखना है, कैपिटल बैलेंस, है ना। तो प्रेम हमारे रिटायर हो रहे हैं, इनको हमने नागपुर की लैंड दी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 45 लाख, और 15 लाख का हमने मनी दिया है जो ऊपर हमने पढ़ा था, तो 60 लाख का हमने इनको पे किया है। अब आपको यह देखना है कि किस चीज के बदले में आपने इनको 60 लाख दिए हैं। तो इनके कैपिटल के बदले में इनका कैपिटल बैलेंस सेटल करने के लिए हमने इनको 60 लाख पे किए हैं। कैपिटल जो दे थी ओपनिंग दैट वाज 32 लाख ऑफ ईच पार्टनर, राइट। और हमने इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया, जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है उसका प्रॉफिट, वो भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नागपुर के लैंड का जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा बुक्स में, वो भी सारे पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दैट विल इंक्रीज योर कैपिटल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा है जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तब, कि आपका जो प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें आप उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हो, राइट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन वो यहाँ कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट एन एक्चुअल असेट विच इज रियलाइज्ड। ओके, सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं देंगे। हम एडजस्टमेंट दे देते हैं बुक प्रॉफिट का, जो कि हमें लैंड बेचने पर हुआ। सो बुक्स में तो इंडेक्सेशन होगा नहीं, बुक्स का जो प्रॉफिट निकलेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। 45 lakhs minus 25,40,000 विच इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर तो हम इंडेक्सेशन नहीं लगाएंगे। 19,60,000, और इस पे हमको टैक्स का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। टैक्स जो हम पे करेंगे सरकार को इसके ऊपर 20% प्लस सेस, सो ये हमको पे करना है 11,90,000, 20% प्लस हमारा सेस। सो 247520 का हमारा टैक्स बन रहा है, 247520 विच विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा, वो नेट ऑफ टैक्स बचेगा 1712,480 विच विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्टनर्स। फर्स्ट वाली जो फर्म है उसमें 4 पार्टनर्स है, 1712,480 डिवाइडेड बाय 4। सो हर एक पार्टनर के हाथ में आया 428,120। तो इसका कैपिटल भी बढ़ गया, सारे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगे, लेकिन हमको अभी सिर्फ प्रेम से मतलब है। 3628,120 इज द कैपिटल बैलेंस जो आपको उसको पे करना था, जिसके बदले में आपने इसको 60 लाख के वर्थ की चीजें दी हैं। देयरफॉर द गेन
which is calculated in the hands of the firm under section 45(4) will be 2371880. ओके, ये हमारा गेन आ जाएगा 45(4) में. अब हमको इसको अलग अलग करके बताना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. ठीक है, द गेन विल बी एट्रीब्यूटेड टू द रिमेनिंग असेट्स, राइट. सो 45(4) में रिमेनिंग असेट्स में गेन को क्या कर दिया जाएगा, एट्रीब्यूट. तो हमारे पास जो रिमेनिंग असेट्स है वो 2 लैंड्स बची हुई है और एक हमारी बची हुई है गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल. व्हेन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट, आपने सबने ये टॉपिक पढ़ा होगा कैपिटल गेन का, तो उसमें क्लियरली ये चीज बोल रखी है कि जब गुडविल के अगेंस्ट अगर कोई गेन आप अपोर्शन करते हो या एट्रीब्यूट करते हो, दैट इज अ शॉर्ट टर्म गेन, एंड रेस्ट विच इज नॉट गोइंग इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गोज फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो इन दोनों ही लैंड्स में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है वो हम देख लेते हैं पहले. 50 माइनस 15 दैट इज 35 lakhs, और जो दूसरा लैंड है हमारा 250 माइनस 88 दैट इज 162. और यहाँ तो पूरा 70 लाख का हमारा एडिशन ही हो गया है. 162 में मैंने 35 प्लस करा दैट इज 197. सो टोटल जो मेरा गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन पर तीनों रिमेनिंग असेट्स को मिलाकर, मतलब नागपुर लैंड तो दे दिया जो पार्टनर गया उसको, जो बचे हैं वो क्या क्या बचे हैं हमारे पास, 2 लैंड्स और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिस पर हम इस 45(4) को एट्रीब्यूट करेंगे ताकि आगे चल करके हम सेल कंसिडरेशन में से उसको एडजस्ट करें, सो दैट देर इज नो डबल टैक्सेशन, है ना. नहीं तो देखो हम नागपुर लैंड पे एक तरीके से 2 बार टैक्स दे रहे हैं. सो वो एट्रीब्यूट करने के लिए हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा. जो लैंड से रिलेटेड है वो चला जाएगा शॉर्ट टर्म में, और जो गुडविल से रिलेटेड है वो चला जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में. सो लेट अस डिवाइड दिस इन द रेशियो ऑफ गेन्स which has been incurred on the remaining asset. So 2371880 into 197 divided by 267 will go to the remaining 2 lands, that is it will go to the long term capital gain. ये क्या हो जाएगा हमारा long term capital gain जैसा chargeable to tax होगा in this concerned previous year. और जो बचा हुआ है हमारा 2371880 multiplied by 70 divided by 267 621,841, ये हमारा चला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, जो टोटल गेन हुआ वो. अब आगे चल करके क्या होगा, इस इन लैंड्स में से भी वो इंडिविजुअल, ये तो मैंने कंबाइन निकाल दिया कि कितना लॉन्ग टर्म है कितना शॉर्ट टर्म है, बट ये भी अलग अलग जाएगा दोनों लैंड्स पर. जब वो लैंड सेल होगी या जब वो गुडविल सेल होगा तब गुडविल के वैल्यू ऑफ सेल में से हम इतना माइनस करके फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा सी वाला. तो 2.2 का हमारा आंसर आ रहा है सी. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. What would be the capital gains under 45(4) in the hands of Y and Company? Nil, क्योंकि Y and Company में डिसोल्यूशन हो रहा है और डिसोल्यूशन में 45(4) एप्लीकेबल नहीं होगा. 2.3 का nil. ठीक है. What would be the amount apportioned at land at Pune and Mumbai? Very simple. इसी को वापस और आगे बढ़ा दो. तो मुंबई में हमने निकाला था 15 लाख आ रहा था, है ना, सॉरी 35 लाख और 162. तो इसको और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने को. सो 175,039 को और बांट देते हैं. ठीक है, तो हम करते हैं 2371880 इंटू 35 अपॉन 267 और 2371880 इंटू 162 अपॉन 267. तो लैंड जो बाकी के बचे हुए हैं उन पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2371880 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 267, दैट इज 310921, और 2371880 डिवाइडेड बाय 267 multiplied by 162, that is 1439118. So ये हमारा क्या हो जाएगा, distribution amongst the remaining lands. Let us check the answer. 310921 and 1439118. सिंपल है, जो पूरा गेन है उसको जो इंडिविजुअल गेन्स हुए हैं उन रेशोज में आपको अपोर्शन करना है. तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट. लास्ट, if the self generated goodwill is sold in the previous year 23-24, that is the next year, for 80 lakhs, now it is a self generated goodwill, we all know cost of acquisition will be nil. What would be the capital gain on such sale? तो आपका जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से ये जो गेन आपने पिछली बार अपोर्शन किया है, क्योंकि इतने पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, है ना, प्रीवियस ईयर 23-24 में इस पर आपने ऑलरेडी टैक्स
सॉरी प्रीवियस ईयर 22-23 में इस पे आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। तो अब जब आप एक्चुअली इस गुडविल को सेल कर रहे हो, ये तो नोशनल हो गया एक तरीके से, गुडविल की सिर्फ वैल्यू बढ़ी, सेल थोड़ी किया था। तो इस अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन, जब हम एक्चुअली गुडविल को सेल करेंगे। तो जितना गेन हमने गुडविल को एट्रीब्यूट किया है वो गुडविल की एक्चुअल सेल वैल्यू में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 621841 will be reduced from the sales consideration of 80 lakhs. Now, because it is a self-generated goodwill, no deduction will be available of cost of acquisition, and therefore this will become my taxable gain. However, had it been purchased goodwill, या फिर अगर वो लैंड की बात हो रही होती, तो जब ये लैंड हम सेल करेंगे, जैसे हम सपोज बात करें मुंबई के लैंड की या पुणे के लैंड की, तो पुणे का लैंड जब सेल होगा तो उसकी सेल वैल्यू में से 310921 आप माइनस करोगे, फिर बाकी कंप्यूटेशन वैसा ही चलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह माइनस करके फिर आपका बचा हुआ गेन हो जाएगा। क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है तो यहाँ पर आपको कोई कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो 73, 78, 159 इज द टैक्सेबल गेन्स इन केस ऑफ goodwill. Okay, if the goodwill is sold in the next year. So this is how you will be applying the provisions of 45(4) and 9B. बहुत comprehensive case scenario था और बहुत छोटी छोटी बातों पे हमने ध्यान दिया, रीड करते समय बहुत सारी चीजों पे फोकस किया, एंड गोइंग थ्रू द प्रोविजंस हम समझते चले गए कि कैसे एक एक स्टेप वाइज हमको कंप्यूटेशन करना है। सो आप भी सॉल्व करके देखिए, इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू डिस्कस।